Today's topic is Magad and Mauryan Empire. So before we start the lecture, first of all, I will let you know that as the IVC was considered as the earliest civilization of Indian subcontinent, Mauryan Empire is considered as the earliest empire of Indian subcontinent. Right? Okay. Now try to recall the history from the first lecture, in which we have covered the human evolution, their movement, right? So just try to recall how the human evolved, then his journey, right? Then his efforts for survival, and they were completely dependent on the nature. They used stones for many of their requirements, like shelter, for food, for protection, hunting, right? And after Stone Age, the last age of Stone Age was Neolithic. And till the Neolithic period, this discovered many things, right, which changed the human's life. And these discoveries were the discovery of fire, right? Then the use of wheel, agriculture, right? Clear? After Stone Age, they started using metal with the stone. And that metal was copper. After Stone Age, which period came? Chalcolithic. In Chalcolithic period, the human being used stone plus copper. Chalcolithic. Chalco means copper, lithic means stone. After Chalcolithic, they become so intelligent. Till now, they become so intelligent, and then they used their skills, their knowledge, their awareness, and they created the first or the earliest civilization of Indian subcontinent. That was IVC, Indus Valley Civilization. And we have gone through the town planning of IVC people. किस level की थी town planning? Highly skilled, right? Their knowledge about metals, they used bronze, right? Sculpture art, dance, painting, civil engineering, architecture, metallurgy. So they were very much skilled, talented, intelligent. And the economy of IVC was based on trade. That means they focused more on manufacturing the goods, and then they made trade networks within their civilization and outside of their civilization, right? They made trade contacts with Mesopotamia, Arab region, right? Okay. After IVC, after the decline of IVC, the whole civilization, a new period started, a new culture emerged. And that culture was known as Vedic culture, made by Aryans. So the period of IVC was known for the development of cities, trade, engineering skills, and the Vedic period was popularly known for
the development of literature, the development of spirituality, right? And in this whole Vedic period, which began from 1500 BCE, from the early Vedic, Rig Vedic period, right? And now we are discussing the later Vedic period, the political system in later Vedic period, right? ऐसा नहीं था कि सिर्फ लिटरेचर था, स्पिरिचुअलिटी थी, पॉलिटिक्स भी थी ना. एंड दिस पार्ट महाजनपद, ये कहाँ आता है, किस फेज में आता है? इन लेटर वैदिक पीरियड, राइट? यहां से आपकी हिस्ट्री और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. वो जो अभी तक हमने पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड स्पेसिफिकली दैट टॉपिक, मौर्यन एम्पायर, is most important. That later Vedic period is most important, right? Later Vedic period. Why the later Vedic period is so much important? It is important in the perspective of society. In the perspective of society. Because of the Varna system. It is important from the perspective of economy. Why? Because in the later Vedic period, after the restriction over the Varna system, various skills emerged in the society, right? Skills emerge हुई तो क्या हुआ? Manufacturing units बहुत सारी आई, अलग अलग art, different artists. Getting this? And then they promoted the trade, and then trade promoted city. That means the urbanization. The later Vedic period is very much important in the perspective of art and culture. आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में क्या? लिटरेचर. वैदिक पीरियड में क्या था? लिटरेचर. सो लिटरेचर, right? If you remember the Vedic literature, which consists Vedas, Brahmanas, Aranyakas, and Upanishads are known as Vedantas, and Upanishads are also considered as the philosophy of Veda, right? So later Vedic period is important for art and culture because of development of literature, because of philosophy, right? The later Vedic period is very much important in the perspective of, religion. Religion. Why? Because of the restriction in the Varna system. These three sections, and specifically the Vaishya Varna, right? They raised their demands for getting a good social status, right? And they got support from the Kshatriya Varna. And from the Kshatriya Varna, Mahatma Buddha and Swami Mahavir, they founded new religions. And these religions were Buddhism and Jainism. And many others, like Ajivika sect. See, these religion and their philosophies are known as heterodox.
while the Brahmanism is known as orthodox. That means the philosophies of Vedic philosophies, there are 6 schools of philosophy, right? So these 6 schools of philosophy are considered as orthodox philosophical schools, जो हम art and culture में cover करेंगे, right? These religions are known as heterodox. अब reason क्या है इनको ऑर्थोडॉक्स क्यों कहते हैं और इनको हेटेरोडॉक्स क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक जो मेजर रीजन है, दैट इज ब्राह्मणिज्म बिलीव इन वेदास, वैदिक लिटरेचर. दे एक्सेप्टेड द authority of Vedas, right? And these religions, Buddhism, Jainism and Ajivik sect, they opposed the authority of Vedas. So जो religion वैदिक philosophy in वैदिक वेदों की जो authority है उसको accept करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्थोडॉक्स. और जो उसे रिजेक्ट करता है, oppose करता है, they are known as heterodox, right? And the difference is all about the philosophy, right? Religion जो भी हो, each and every religion talks about the peace of the soul and how to live our life. तो पाथ अलग अलग है, ठीक है? एट द एंड बात सबकी वहीं पे आके रुकती है. तो रिलीजन जब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है, ठीक है, फाइनली पहुंचना एक ही जगह है, फिर अलग अलग रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू, राइट, और इसी में ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सबकी अलग अलग की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट अलग अलग क्या है? रिक्वायरमेंट होती है बिलीफ सिस्टम पे, जो हम जिस भी रिलीजन में हैं उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने के लिए जो कुछ भी पाथ बताया गया है, अगर वो हमें अच्छा लगता है फॉलो करना, तो हमें उस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, राइट? जाना सबको वही है, ठीक है? सो लेटर वैदिक पीरियड is important for society, important for economy, important for art and culture, important for religion, and then it is important for political development. It is important for political development. And in the political development, in this period, जनपदास क्या बने सबसे पहले? जनपद. That means now the importance was given to the property along with the human beings. Janpad, that means the importance of territories. Then जनपद से क्या बना? महाजनपद. Mahajanpadas. And how many Mahajanpadas were there? 16. 16. Now think. Initially, from Jan to Janpad emerged, right? And then, when they started acquiring the territories, see, initially they were known as Jan. That means the importance were given to human being, Jan. Then they started giving importance to the territories. अब जैसे ही टेरिटरी को इंपॉर्टेंस देनी शुरू की, वैसे ही क्या आता है? Ambitions to get to acquire more or more lands, more properties, right? So जैसे ही जनपद बने, वैसे क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा टेरिटोरियल बेस क्रिएट करने के लिए, दे स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर.
अब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, दो लोग आपस में लड़ेंगे तो कोई एक तो जीतेगा, है ना। और जैसे ही जीते वैसे ही क्या किया, जो हार गए उनकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया, उसकी टेरिटरी को अक्वायर कर लिया। किसी भी जनपद की टेरिटरी को अक्वायर करने के दो तरीके। पहला, डायरेक्ट फाइटिंग, लड़ो, जीत जाओ, अक्वायर कर लो। एंड द सेकंड वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मेक मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादी कर लो। अब शादी करोगे तो गुड रिलेशंस होंगे, ठीक है, गिफ्ट्स मिलेंगे, तो गिफ्ट्स में उसकी जगह थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी ले लो, ये एरिया हम इनको देते हैं। अब उससे क्या होगा, इफ टू जनपदास connected or tied with matrimonial alliances, तो उनके बीच में कनेक्शन कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, अच्छे रिलेटिव बन गए अब, है ना। अब जैसे अच्छे रिलेटिव बने वैसे क्या हुआ, आपस में तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, चलो हम दोनों मिलकर उस तीसरे पर अटैक करते हैं। गेटिंग दिस? तो तीसरे पर अटैक, और दोनों मिलके भी नहीं तो कोई एक चला गया लड़ने के लिए, बाद में कह रहा है मेरे साथ दे। अब अगर सन इन लॉ, अगर दामाद बोलेगा कि मैं अटैक कर रहा हूं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो अब ससुर जी नाराज नहीं कर सकते, तो उनको आर्मी भेजनी पड़ेगी, राइट। सो दे स्टार्टेड acquiring territories, focused more on the territorial expansion. So the territorial expansion converted janpadas into महाजनपदास, राइट। अब महाजनपद बन गए, ठीक है। अब महाजनपद भी कितने बने, ऐसे ही सबने एक्वायर किया ना। सो 16 महाजनपदास वर इमर्ज्ड in Indian subcontinent, अलग अलग region में। Now think about and just try to recall the map of 16 महाजनपदास, their locations. अब लोकेशन के अकॉर्डिंग सबके पास रिसोर्सेज अलग अलग हैं, अलग अलग वेदर, अलग अलग क्लाइमेट में है, अलग अलग नेचुरल सोर्सेज हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, गेटिंग दिस, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉस है, राइट। अब क्या होगा, पावर डिफरेंसेस होंगे, है ना, पावर डिफरेंसेस होंगे, कंपटीशन होगा। अब ये 16 महाजनपद भी आपस में लड़ने लगे टू बिकम मोर पावरफुल। एंड देन in these, among these 16 Mahajanpadas, there were 4 more powerful Mahajanpadas. And these more powerful Mahajanpadas were Kausal, Vajji, Magad, and Avanti, right. Among these 4 Mahajanpadas, 2 were comparatively more powerful, and these 2 were Magad and Avanti, and they were enemies of each other. अब देखो, जो दो सबसे पावरफुल होंगे, अब 16 में से 4 में से भी 2, so this was genuine to be rival, to be enemy, right. अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, right. Among these 2, इन दोनों में से भी who was the most powerful, who become the most powerful, who become most powerful, become more powerful, बना ये most powerful, getting this? यहां तक की स्टोरी समझ आई? So now
we will start our today's topic from that line. Magad become most powerful, right? So what were the reasons, what were the factors which supported Magad to be the most powerful Mahajanpad of Indian subcontinent? So, क्या-क्या factors हो सकते हैं? Tell me. Resources, ma'am. Sorry? Says natural resources, ma'am. Natural resources, good. Then this is the major factor, right? And एक और है बहुत ही important. Capable leadership. Very good. हाँ? वो सब इसी में आ जाएंगे. And the second most important factor was capable and powerful kings. Luckily ये एक लक हो गया, ठीक है, कि मगध में जितने भी आए, ठीक है, किंग्स, रूलर्स, लीडर्स, उनमें से ज्यादातर बहुत पावरफुल आए, अग्रेसिव इन नेचर, राइट? सो उनका एम्बिशियस नेचर, उनका अग्रेशन, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बना जिसने मगध को सबसे पावरफुल बना दिया, राइट? अब हम किसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे? मगध की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, सी, बिकॉज इनिशियली इट वाज ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल से फिर किंग और ये सब आगे आगे बढ़ते चले गए, महाजनपद बन गए, पावरफुल बन गए. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हर्यंक डायनेस्टी. देयर वर 4 डायनेस्टीज. ऐसा नहीं उस डायनेस्टी से पहले कोई डायनेस्टी नहीं थी, इंपॉर्टेंट में, ठीक है? डायनेस्टिक रूल कब से स्टार्ट होना? डायनेस्टिक रूल मींस एक आइडेंटिफिकेशन सिंबल, डायनेस्टी, कि अब नाम किसका यूज कर रहे हैं? डायनेस्टी. और रूल क्या हो गया? हेरिडिटरी रूल हो गया ना. सो 4 डायनेस्टीज. And these 4 dynasties were, first one was Haryang dynasty. The second one was Shishunag. Then Nand dynasty. And Maurya. Right? In these 4, we will start from Haryank dynasty. Right? See, Haryank dynasty में वो अर्लीस्ट रूलर, ठीक है, या वो किंग जिन्होंने मगध को एज अ किंगडम एस्टेब्लिश किया, एज अ किंगडम. सो द फर्स्ट रूलर, the person who is considered as the first ruler of Magad was known as Bimbisar. Bimbisar, Haryank, from Haryank dynasty. Right? ऐसा नहीं इनसे पहले कोई लीडर थे नहीं, but that credit is given to Bimbisar to establish Magad as a kingdom.
क्लियर? बिंबिसार। अब देखो, ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, पावरफुल तो थे ही, बट पावरफुल होने के साथ साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी थे, राइट? He was aware about the position of Kausal, the position of Vajji, and the position of Avanti, right? So he decided to make alliance. Which type of alliance? Matrimonial alliance. And he made matrimonial alliance with Kausal. कौशल से मैट्रिमोनियल अलायंस बनाई, अवंती से तो बननी नहीं थी क्योंकि वो तो राइवल था। अब बचे कौन? कौशल और वज्जी। वज्जी जो था वो रिपब्लिक था, नॉट मोनार्कियल, इट वाज रिपब्लिक रूल्ड बाय अ ग्रुप। गेटिंग दिस? सो ही डिसाइडेड टू मेड मैट्रिमोनियल अलायंस विद कौशल, कि ठीक है कौशल से अलायंस बनाई जाए, ठीक है। और कौशल, क्योंकि उस टाइम पे कौशल बहुत पॉपुलर था और कौशल को जो रूल कर रहे थे प्रसेनजीत, ठीक है, काफी पावरफुल किंग थे प्रसेनजीत, उनके सिस्टर से शादी कर ली, ठीक। एंड देन उस टाइम पे कौशल का कंट्रोल था काशी पर, काशी अनादर महाजनपद, ठीक है। तो काशी के कुछ टेरिटरीज कौशल के पास थी। नाउ think about the location of, first of all think about the location of Magad. This is Magad, ठीक है। मगध के थोड़ा ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में इधर कौन है? अंग। वेस्ट में कौन है? काशी। और इधर कौन है? कौशल। और यहां कौन है? अवंती, ठीक है। ये मगध, ये अंग, ये कौशल, ये काशी और ये अवंती। अब काशी की कुछ टेरिटरीज किसके पास थी? कौशल के पास। सो उन्होंने क्या किया? मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए कौशल के साथ, ठीक है। और इन डाउरी एज अ गिफ्ट some territories of Kashi were handed over to बिंबिसार, कि अब हमारी प्रॉपर्टी, देखो टेरिटरी तो बहुत दूर पड़ती है, तो हम क्या करें, जो नजदीक वाली है, ठीक है, आपसे नजदीक रहेगी, वो टेरिटरी आपकी, ठीक है। अब क्या हुआ? टेरिटोरियल एक्सपांशन हुआ मगध का, और पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्योंकि कौशल का साथ मिल गया। गेटिंग दिस? एक साथ क्या हुआ? यहां पे पोजीशन स्ट्रांग हुई क्योंकि रिलेटिव बन गए, और यहां पे पोजीशन स्ट्रांग हुई क्योंकि अब काशी के कुछ हिस्सों पर अपना कंट्रोल हो गया। अब किसी भी एरिया में चाहे छोटे से हिस्से पे आपका कंट्रोल हो जाए, ठीक है, तो क्या शो करते हैं? डोमिनेंस, सुपीरियोरिटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट हैपेंड, राइट? सो बिंबिसार गॉट द क्रेडिट to establish Magad as the kingdom. First, he is considered as first capable or powerful king of Magad. After Bimbisar, his son Ajatasattu become king after Bimbisar. After Bimbisar doesn't mean after the death of Bimbisar. अब तुझे बिना, मतलब जब तक फादर है तब तक अजातशत्रु कैसे बने? वो ऐसे बने कि उन्होंने क्या किया, he disliked the policies of his father, so many a times he tried to convince him कि ऐसा मत करो, सीधे अटैक करो, because अजातशत्रु was very much aggressive, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, बहुत ज्यादा अग्रेसिव। और वो कहते थे क्या रिलेटिव रिलेटिव करते हो, पूरे कौशल पे अटैक करो, आप पूरे काशी पे अटैक करो, ये थोड़ी हम मामा के घर जाएं, थोड़े से गिफ्ट दे दिए खुश हो गए, ना ना, अटैक करो। वो कहते पागल हो, मामा है तुम्हारे, मम्मी नाराज हो जाएंगी। तो कहते नहीं माने बिंबिसार, तो उन्होंने क्या किया, ही इम्प्रिजन्ड हिज फादर,
फोर्सफुली, अपने ही फादर को जेल में डाल दिया, कह रहे आप आराम करो। एंड he forced him to be starved until death. ठीक है, भूखा रखा तब तक जब तक मर नहीं गए, अपने ही फादर को। किसने? अजातशत्रु ने। अब सोच लो, जब फादर को ही नहीं छोड़ा तो मामा क्या होना था? अजातशत्रु। Ajatashatru imprisoned his father Bimbisar, right, and starved him till death, right? कहाँ तो राजा थे, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ? जैसे ही अब अजातशत्रु किंग बने, क्योंकि बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत एम्बिशियस थे, हाँ, इसीलिए तो ये नाम पड़ा इनका, अजातशत्रु, ठीक है। सो जैसे ही ये किंग बने, इन्होंने अटैक किया काशी पे, एंड ही अक्वायर्ड कंप्लीट काशी, राइट। ही अटैक्ड ऑन हिज अंकल, मैटरनल अंकल मतलब मामा, उन पर अटैक किया, प्रसेनजीत पर, राइट, और सक्सेस मिली उनको बहुत ज्यादा। देन ही अटैक्ड, इतने में नहीं रुके वो, देन ही अटैक्ड अंग, नहीं, नॉट अंग, देन ही अटैक्ड ये तो हम लोकेशन देख रहे थे ना, यहाँ पे फोर्थ पावरफुल कौन था? इधर वज्जी, और यहाँ कौन था? अवंती, ठीक है। ये तो हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कि मगध कहाँ पे है, ठीक है। तो पहले किस पे, कहाँ अटैक किया? काशी, कि डाउरी में मेरे पापा को थोड़ी सी जगह मिली थी, उससे कुछ नहीं होना, वी वांट कंप्लीट काशी। अटैक्ड, then he attacked his maternal uncle and got success, and then he attacked Vajji, और लगभग 10 साल तक लगातार वज्जी पे अटैक किया, ठीक है। एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट, उसको पता था कि वज्जी जो है ना पावरफुल है, ठीक है। रिपब्लिक है, दैट मीन्स डिसीजन मेकर कोई एक नहीं है कि किसी एक को मार दो तो वज्जी अपने कंट्रोल में, नहीं। मोनार्कियल में क्या होता है? किंग को मार दो, पूरा स्टेट अपना। लेकिन वज्जी क्या था? रिपब्लिक था, रूल्ड बाय अ ग्रुप। सो उन्होंने क्या किया? रूल्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स मींस डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल हेड्स। तो उसने सोचा कि ऐसे तो हम वज्जी को खत्म नहीं कर पाएंगे, तो जो अंग्रेजों ने इतने बाद में किया, वो अजातशत्रु ने बहुत पहले किया। क्या? डिवाइड एंड रूल। उसने वज्जी को ही ब्रेक कर दिया, वज्जी में ही इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा दिए कि इनको आपस में लड़वा दिया। पहले वो पहले आपस में लड़े, आपस में लड़के जब वो कमजोर हो गए तो उनके ऊपर अटैक किया, और वज्जी की कैपिटल वैशाली पे जाके बैठ गए कि नाउ इट्स माइन। चलो, वो 10 साल तक कितनी मेहनत की बेचारे ने वैशाली को अक्वायर करने के लिए, राइट। आफ्टर वैशाली, आफ्टर वज्जी, फिर उसने, अब इतने में तो नहीं रुकना था, अब कहां गए बताओ? हाँ, देन ही डिसाइडेड टू अटैक ऑन अवंती। और अवंती पे अटैक करते रहे बिकॉज ये भी पावरफुल था और ये भी पावरफुल था, दोनों अटैक करते रहे, लेकिन सक्सेस मिलने से पहले डेथ हो गई अजातशत्रु की। अब सोचो, अजातशत्रु के टाइम तक मगध ने कितना एक्सपांशन किया, और इंक्रीज हो गया टेरिटोरियल बेस, राइट। आफ्टर अजातशत्रु, उदयन become the ruler. उदयन
and he was also aggressive, expansionist ruler, right? So he increased the territories of Magad up to Himalaya in the north and up to Chota Nagpur plateau in south. So उदाइन का कंट्रीब्यूशन भी एक्सपेंशन में काफी ज्यादा है. Clear? So this was about the Haryank dynasty. Then Shishunag dynasty came, right? और इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड है और इसमें जो रूलर्स आए अब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है. दैट मीन्स जो रूलर्स थे दे वर नॉट दैट मच कैपेबल, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ वी विल डिस्कस नंद डायनेस्टी. और नंद डायनेस्टी में भी लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, राइट? वैसे दो रूलर्स हैं इंपॉर्टेंट, महापद्मनंद एंड धननंद. लिखेंगे कैसे? धननंद. धननंद और घननंद, right? He was the last king of Nand dynasty. Clear? Okay. Mahapadmanand was very much popular for the expansion, and because of him, the Nand dynasty was credit दिया गया Nand dynasty को as the founder of empire. So which dynasty is known as the founder or creator of the empire is? हम एक creator की बात कर रहे हैं. Creator of empire. That means start किसने किया creation? जनपद से महाजनपद बने, महाजनपद से expansion किया, क्या बने? Kingdom बने as a state. अब क्या कर रहे हैं? अब empire building. That means empire means having control over various kingdoms. अब kingdoms को acquire कर रहे हैं तभी तो empire बनेगा, right? So Nand dynasty got the credit of being a creator or founder of empire. Empire builders, इनको empire builder कहा जाता है because of their expansionist policies. Mahapadmananda, right? Then Ghananand or Dhananand, he was the last ruler of Nanda dynasty, and he was also very ambitious, Ghananand. But the fact is, the people of Magad disliked him. घननंद को पसंद नहीं करती थी वहां की जनता, because he was so rude, he was so arrogant, he was so ambitious. अब जिसके पास इतना पावरफुल, अब इनहेरिटेंस में जिसको एक बनता हुआ एम्पायर मिल जाए उसके अंदर ईगो एरोगेंस तो आएगा, right? And he imposed his force for controlling the people, right? So he was not having that much support from the people. लोग अंदर ही अंदर बात करते थे ये बेकार है, right? और एक इंसिडेंट हुआ in his court, in the court of Ghananand. एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक्सपर्ट मिनिस्टर थे यहाँ पर. क्या नाम था उनका? चाणक्य, also known as Kautilya, also known as Vishnugupta, right? He was very intelligent. So Vishnugupta या चाणक्य या कौटिल्य, right? उनका एक ड्रीम था, क्योंकि एम्पायर बिल्डर्स तो थे ही ना. एम्पायर बिल्डर्स मीन्स acquiring more and more dynasties, more and more kingdoms. That means establishment of
अखंड रूल, अखंड भारत, राइट कि एम्पायर इतना होना चाहिए कि जितनी हमें बाउंड्रीज, जितनी लैंड बाउंड्रीज दिख रही है ना, वो सारी अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। एग्जैक्टली। सो ही suggested him to be liberal, कि जहां पावर शो करनी है वहां पावर शो करेंगे, जनता के लिए, पीपल के लिए आप इतना एरोगेंस मत शो करो, थोड़ा सा आपको लिबरल रहना चाहिए। अब उनकी सलाह पसंद नहीं आई उनको, बिकॉज ही वॉज द किंग, चाणक्य वॉज ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी बात तो सब सही है आपकी, लेकिन आप जो है आप अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमा, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रहे हो, यू आर क्वेश्चनिंग द किंग, सो आई डोंट थिंक दिस प्लेस इज गुड फॉर यू, आप जाओ आराम करो। ही डिसरिस्पेक्टेड चाणक्य, राइट, और उनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया। बिफोर लीविंग द कोर्ट ऑफ घनानंद, चाणक्य को भी गुस्सा था, ठीक है, उन्होंने बोला कि आप से ये काम होगा भी नहीं, आपसे ये काम होगा भी नहीं, अखंड भारत तो बनेगा लेकिन आप नहीं बना पाओगे। तो बोले कि अगर मैं नहीं बना पाऊंगा तो इस धरती पे कोई दूसरा है भी नहीं, तो बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा, एंड आई विल ट्रेन दैट पर्सन टू बी द एम्परर। उसने कहा ठीक है, ऑल द बेस्ट, जाओ, राइट। काफी सालों तक चाणक्य परेशान रहे, घूमते रहे, अब उन्हें ऐसा कोई मिला नहीं, और मिला तो कौन मिला, एक बच्चा खेलता हुआ, a tribal boy, he was not kshatriya, एक ट्राइब थी that was known as मुरा ट्राइब, मुरा से क्या बना, मौर्य, तो मुरा ट्राइब का बच्चा खेल रहा था, बड़ा स्मार्ट था, चीटिंग भी ऐसे कर रहा था कि पकड़ में नहीं आए, और हर बार खुद जीत रहा। अचानक के बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहे उस बच्चे को, और बड़े खुश हो गए उसको देख के कि ये लड़का है, इसमें कुछ अलग बात है, ठीक है, अगर इसको कुछ ट्रेनिंग दी जाए तो ये कुछ कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, स्मार्टनेस होती है, ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, पेशेंस, करेज, और सबसे इंपॉर्टेंट जब एम्पायर बिल्डिंग की बात आती है, जब पूरी जितनी भी आपको लैंड बाउंड्रीज दिख रही हैं उन सबको एक करने की बात आती है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स नहीं चलता, वहां पे क्या चलता है, वहां पे आप लोगों को भी बांध के कैसे रखोगे वो बात चलती है। टेरिटरीज को कैसे बांधोगे, टेरिटरीज तो तब बाउंड होंगी ना जब वहां के लोग बाउंड होंगे, और लोगों को बाउंड करने के लिए या तो आपके पास आर्मी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, या जो बाउंड कर रहा है उसके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि लोग बाउंड होने को रेडी हो जाए, और उसके लिए वो जो पर्सन है उसमें कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब अपने एरिया से, अपने लोगों से जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो कनेक्शन होना चाहिए, वो वाली क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक। अब वो सारी क्वालिटीज उनको उस बच्चे में दिखी कि ये अपने एरिया से भी बहुत प्यार करता है, ये लोगों से भी बहुत प्यार करता है, ये स्मार्ट है, अपनी जीत के लिए क्या कर सकता है, चीटिंग कर लेगा, पता भी नहीं चलने देगा, और खुश भी कर देगा सबको, ठीक है। तो इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब उसको ट्रेनिंग देते देते बड़े हो गए वो, ठीक है, काफी टाइम लगा, कितना पेशेंस था उनमें देखो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, पॉलिटिकली, राइट, दैट मीन्स द नॉलेज अबाउट शस्त्र एंड शास्त्र बोध, वो सारी ट्रेनिंग उसको दी, एंड फाइनली ही बिकम रेडी
बाय ट्रेनिंग वो क्या हो गए, बिल्कुल रेडी हो गए टू स्टार्ट देयर रूल। अब चाणक्य को एक मौका चाहिए था कि अब कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। अब आर्मी तो है नहीं हमारे पास, भाई पर्सन ही तो तैयार हुआ है आपका, तो पहले तो हमें आर्मी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी अपनी। अब सीधे जाके आप सोचो, मगध जो एक एम्पायर बन रहा था, ठीक है, उस पे कैसे अटैक कर देंगे सीधे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कुछ तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आने दो, देन वी विल सी। एंड द अपॉर्चुनिटी केम। अपॉर्चुनिटी क्या आई? द अटैक ऑफ एलेक्जेंडर इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट, इंडस रिवर। डू यू रिमेम्बर? हाँ, एलेक्जेंडर आए थे, इंडस तक आए थे, और इंडस तक आकर वापस चले गए, क्योंकि उनकी आर्मी ने क्या कहा कि इस रिवर को क्रॉस करने के बाद वहां जो राजा रूल करता है, ही इज सो मच पावरफुल एंड ही बिलोंग टू नंद डायनेस्टी एंड हिज नेम इज घननंद। अब सोचो, अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी ने कहा कि चलो यहीं से वापस चलने में समझदारी है, यहीं से चलो। तो मेजॉरिटी ऑफ लिटरेरी एविडेंसेस शोज कि उन दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, दोनों आर्मीज के बीच, अलेक्जेंडर और नंद की आर्मीज के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। अलेक्जेंडर की आर्मी खुद वहीं से वापस चली गई, उन्होंने इंडस रिवर क्रॉस ही नहीं की, राइट। और इंडस रिवर क्रॉस नहीं की, ग्रीक्स थे वो, ठीक है। वेरियस ग्रीक लिटरेचर describes about the power of Nand ruler Ghananand. They mentioned about the army of Ghananand, and they said the army of Ghananand includes around 2 lakh infantry soldiers. Infantry means हाँ, पैदल। Around 20,000 cavalry, घुड़सवार 20,000, around 2,000 chariots, and most important around 3,000 elephants. Obvious. उन्होंने कहा देखो, the Nand ruler is having a huge army of 2 lakh infantries, 20,000 cavalries, 2,000 chariots, and around 3,000 elephants in the army, trained elephants. अब वो तो वापस चले गए अलेक्जेंडर, ठीक है। कहां तक आए थे वो? यहां तक आए, राइट। और यहां से आके दे रिटर्न बैक। इतनी भी अच्छी नहीं है, हाँ हाँ, वो तो मैं सिखा दूंगी आपको, ठीक है। अब सोचो, अब क्या हुआ, अलेक्जेंडर जब यहां तक आए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट तक, तो क्या था, अलेक्जेंडर जहां जहां तक पहुंचे वहां वहां का एरिया उन्होंने जीता और उसको अक्वायर कर लिया और ग्रीक रूल एस्टेब्लिश कर दिया। यही हुआ था, हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, भले ही उन्होंने इंडस को क्रॉस नहीं किया, लेकिन द रीजन वेस्ट ऑफ इंडस केम अंडर कंट्रोल ऑफ अलेक्जेंडर। इंडस के वेस्ट वाला जो रीजन है, दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अलेक्जेंडर, राइट। और ग्रीक्स क्या करते थे, अपने गवर्नर को वहां पर बिठा देते, राइट। एंड Alexander appointed Seleucus Nicator as his governor in the northwestern front of Indian subcontinent. That means west of Indus. यहाँ पे अब कौन आ गए, सेल्यूकस निकेटर आ गए, ठीक है। तो चाणक्य ने कहा, चाणक्य ने सोचा कि इस बार तो भले ही वो वापस चला गया, अब जब घननंद के बारे में उनको पता था तो ऑब्वियस सी बात है उनके बारे में भी यहाँ को सबको पता था,
राइट। घननंद ने कहा आ जाने दो उनको, फिर ही देखेंगे। वो वेट कर रहे थे, इंडस क्रॉस करने दो, क्रॉस ही नहीं किया, चले गए। चाणक्य ने कहा कि ही इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। क्या हुआ, हार गए गेम? हाँ मुझे पता है, सब पे नजर होती है मेरी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। हाँ अच्छा, सो वेयर वर वी? सो चाणक्य थॉट, चाणक्य रियलाइज्ड कि इस टाइम तो अलेक्जेंडर वापस चले गए, बट इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए कि कोई आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट तक आ जाए। वो हो सकता है अगली बार इंडस क्रॉस कर ले, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस पार्ट में अगर ग्रीक रूल एस्टेब्लिश हो गया है, दैट मीन्स कि अब यहाँ पर ग्रीक्स पहुंच गए, तो हो सकता है अब वो आगे बढ़ेंगे। वो अपने गवर्नर को बिठा गए, अब हो सकता है गवर्नर आगे एक्सपेंशन करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे ग्रीक्स आ चुके, मतलब ये एरिया कैसा है, ये वैक्यूम है जहां पे पावर नहीं थी, इसीलिए तो उन्होंने एक्वायर कर लिया इसको। और अगर किसी दिन उन्होंने इंडस क्रॉस करके इस रीजन में अटैक करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली दे विल गेट सक्सेस। क्यों? क्योंकि मगध कहाँ पे है, वो तो अभी यहाँ पे है। 500 BC का टाइम चल रहा है, मगध स्टार्ट्स फ्रॉम 600 BC। ये 500 400 फोर्थ सेंचुरी चल रही है, क्योंकि जो अटैक हुआ था दैट इज 321 BC। यहां से मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? विक्रमादित्य, वो अलग है, वो बाद में आएंगे। हाँ वो बाद में, हाँ लेकिन इतना नहीं कर पाए जितना मौर्यंस ने किया। विक्रमादित्य गुप्ता पीरियड में आएंगे, ठीक है। सो नंद डायनेस्टी की पावर कहां थी? अभी तक इस रीजन में है। सो चाणक्य रियलाइज्ड इफ दे क्रॉस्ड इंडस दे कैन अक्वायर द रीजन। और जैसे ही इस रीजन को में ये एंटर करेंगे, दैट मींस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। मगध एम्पायर जो बन रहा है वो और ग्रीक रूल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में होंगे। सो दे मस्ट बी स्टॉप्ड हियर, कि वो इंडस तक ही रुके रह जाएं, इसको क्रॉस नहीं करें। अब इसके लिए यहाँ पे पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, और इतना पावरफुल होना चाहिए कि इस एरिया को कैसा बना ले? स्ट्रॉन्ग। इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले ले, ताकि ये कभी भी इसको क्रॉस करके यहां नहीं आए। गेटिंग दिस? देन ही डिसाइडेड कि अब वो टाइम है, अब पता चल गया कि ये रीजन भी कैसा है, वैक्यूम है यहाँ पर पावर का, ठीक है। सो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। देन ही डिसाइडेड कि अब हम कुछ करेंगे। अपनी आर्मी तैयार की। अब आर्मी ऑब्वियसली नंद आर्मी के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी आर्मी थी, ठीक है। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों परेशान, फिर ठीक है मेरे पास ट्रेनिंग है, मैं एम्बिशियस हो गया हूँ, मुझे थोड़ी नॉलेज हो गई है, ठीक है, आपने मुझे ट्रेनिंग दी, आई एम रेडी फॉर दैट, बट हाउ विल वी डिफीट दैट एम्परर, दैट रूलर घननंद? ही इज सो मच पावरफुल। उसने कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ। और काफी दिन तक वो ऐसे घूमते रहे, सोचते रहे क्या किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। और एक दिन दोनों जब जा रहे थे कहीं पे, तो एक ट्राइबल मदर थी, वो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, ठीक है, और उन्होंने बनाई थी खिचड़ी। तो थाली में खिचड़ी परोस के, ठीक है, और वो अपने बेटे को दे दी कि खा लो। और बच्चा छोटा था, उसने क्या किया, सेंटर से उठाया और खाने लगा, हाथ भी जला, मुंह भी जला, फिर रोने लगा, ठीक है। जब रोया तो उसकी मदर ने कहा कि बेटा अगर ऐसे बीच से खाओगे तो गर्म है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, साइड साइड से, किनारे किनारे से खाना चाहिए, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये बात सुनी, वैसे ही चाणक्य ने कहा ही इज राइट, इफ वी विल अटैक द सेंटर, द कैपिटल, तो हार ही होनी है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, बाउंड्रीज पे अटैक करके एरिया एक्वायर करते हुए चलना चाहिए। Then they started acquiring the areas surrounding of
नंद डायनेस्टी, मगध, राइट। और धीरे धीरे इतने पावरफुल हो गए कि नंद को हटा दिया, और 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य बिकम द किंग ऑफ मगध, राइट, king of Magad, and then the rule began on the name of Maurya dynasty. क्लियर, समझ आ गया यहां तक? चलो ठीक है, तो यहां तक नोट करो, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू। ये पूरा नोट करना है। हो गया? So among these 16 Mahajanpadas, these 4 Mahajanpadas were more powerful. And then Magad become the most powerful one. नोट कर लिया तुम दोनों ने? कर लिया नोट? ठीक। Then Magad. So the first factor was natural resources, and then second one is capable and powerful kings, right? And then these 4 dynasties: Haryank dynasty, Shishunag, Nand, and Maurya. Haryank dynasty, Bimbisar, Ajatashatru. बिंबिसार के बारे में लिखो। बिंबिसार इज कंसिडर्ड, चलो लिखो, बनाओ फटाफट। BIMBISARA, बिंबिसार। बिंबिसार is considered to be the first important ruler of Magad. He used his political foresight
FORESIGST, political foresight, and established dynastic relations through marriages with royal house of Kosal, he received some parts of Kashi he had cordial relations, CORDIAL, cordial relations with Gandhar Mahajanpad, with Gandhar अच्छे relations, friendly, cordial relations with Gandhar Mahajanpad. These diplomatic relations increased the strength of Magad now Ajatashatru increased the strength of Magad. The next ruler was Ajatashatru. लिखो. He was more ambitious and aggressive than his father, aggressive and ambitious than his father. He imprisoned his father and starved him to death. He attacked his maternal uncle Prasenjit, maternal uncle Prasenjit, name him king ka. Prasenjit, king of Kosal, he controlled complete Kashi Ajatashatru's next target was Vajji. He successfully acquired Vaishali, the capital of Vajji, after a long period of 10 years.
after a long period of 10 years. लिखो. Ajatashatru invaded the strongest rival of Magad, Avanti, but this time he did not get success. He invaded the strongest rival of Magad, Avanti, but this time he did not get success. His rule ended in 460 BC. 460. Next. He was succeeded by Udayan. Succeeded by Udayan, next ruler. और यहाँ पे लिखो expanded territories up to Himalaya in the north and up to Chota Nagpur Plateau in the south. Udayan was the next ruler after Ajatashatru. Right now, Nanda dynasty. Nanda rulers are described as first empire builders of India. First empire builder of India. According to Puranas, Mahapadmanand was considered as exterminator लिख लिया of Kshatriyas. Next point. Ghananand was also very. Ma'am, exterminator means खत्म करके भगा देना सबको और अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेना. So according to Puranas, he was the exterminator of all Kshatriyas. उसके आसपास के रीजन में जितने भी क्षत्रिय थे सबको मार के भगा दिया. Right. Then Ghananand was very aggressive, arrogant. Ghananand और Dhananand, Dhana लिखो, Dhana, Dhananand was very aggressive, arrogant, and powerful ruler of Nanda dynasty.
according to Greek writings, Nand army consists around 2 lakh of infantry, 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 20,000 cavalry, लिख लो, cavalry, 2,000 chariots, and 3,000 elephants. During the period of Ghananand, Alexander's invasion took place in northwestern front of Indian subcontinent. Northwestern front of Indian subcontinent. He reached up to west bank of Indus, west bank of Indus. There are no evidences of encounter between Magad and Greek army. Next लिखो. Encounter between Magad and Greek army. The Nand rule came to an end by 321 BCE. Nand rule came to an end by 321 BCE. Chandragupta Maurya, with the help of Chanakya, took advantage of this situation to ascend the throne. ASCEND, ascend the throne. Chandragupta Maurya, with the help of Chanakya, took advantage of the situation to ascend the throne of Magad. Now make heading. Geographical significance of Magad. Right. हमने powerful, ambitious rulers discuss कर लिए. So now we will discuss the geographical significance of that Magad. Right. So first of all, focus on the capital of Magad Empire or Magad Mahajanpad.
कौन कौन सी कैपिटल्स थी? राजगृह, एंड पाटलिपुत्र, right? So during the time period of Nand dynasty, Rajgrihi was the capital, and then later Patliputra became the next capital or second capital of Magad. And what are the significances of these capitals? See, capital city में ही राजा होते हैं, king होते हैं, and जितनी भी important ministries होंगी, departments होंगे, कहाँ होंगे? वो कैपिटल में होंगे, ठीक है? और अगर कोई कैपिटल पे अटैक कर देता है एंड सक्सेसफुली कंट्रोल द कैपिटल ऑफ एनी डायनेस्टी, एनी किंगडम, एनी एम्पायर, दैट मीन्स व्हाट? कंट्रोल हो गया मेनली, ठीक है? तो कैपिटल बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन होता है, पावरफुल सेंसिटिव जोन होता है. सो इफ अ प्लेस इज वेरी सेंसिटिव, so that must be located in the strategic point, right? So Rajgriha was very important because it was very strategic location from the perspective of protection, right? Rajgir, gir means hill, गिर और गिरी, राजगिरी और राजगिर और राजगृह, right? Gir means hills. So that place was surrounded by various hills. ये जो कैपिटल थी राजगृह, उसकी प्रोटेक्शन कैसे हो रही थी? नेचुरली प्रोटेक्टेड था वो. So they strategically made Rajgriha as their capital because it was surrounded by giris, that means hills. So it was very difficult for the enemy to directly reach or attack on the capital. और उन्होंने अपनी आर्मी इन हिल्स पे डिप्लॉय करके रखी हुई थी टू हैव अ वॉच. अब हाइट पे होंगे तो नजर अच्छे से रखी जाएगी. सो दैट्स व्हाई ये ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस राजगृह का. Got it? And it was located in the south of the Ganga. Now let us see the significance of Patliputra. Patliputra city was surrounded by, it was also naturally protected. As the Rajgiri was protected by the hills, Patliputra was protected by rivers. Right? Like Ganga, river Gandak, river Son, and river Punpun, right? So that Patliputra was protected by the rivers. So first point was protected by rivers, and these rivers worked for Magad, right, as बताओ, मैं बोलूं उससे पहले मैं चाहती हूँ आप में से कोई वो एनालिसिस करके बताए. कहाँ था ध्यान तुम्हारा? मत सोचो, जो कुछ और है वो क्लास के बाद सोचना है, क्लास के बाद मैं नहीं रहूंगी बताने के लिए, ठीक है? सो पाटलिपुत्र was surrounded by various rivers like Ganga, Gandak, Son, Punpun, right? So natural protection मिले. एक पॉइंट ये हुआ. दूसरा पॉइंट आप बताओ. रिसोर्सेज होंगे, ओके? जो मैं सुनना चाहती हूँ वो बताओ. एग्जैक्टली. waterways, rivers were used as waterways. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए. अब देखो ये जो रिवर्स थी, ठीक है, इनसे उनको रास्ता मिला, ठीक है? They used these waterways for their trade, right? ट्रेड के लिए उन्होंने यूज किया. अब एक बार थोड़ा सा मैप देखो, आप महाजनपद वाला मैप देखो.
दिस इज मगध, राइट, ये रिवर गंगा, ठीक है। चलो अब देखना है इसको, बाय दिस रिवर दे got the opportunity to use the river as a waterway, right? अच्छा, अब ये जो लोकेशन है ये कहाँ है? नियर द कोस्ट, right? So they controlled the North India. They reached in this region, right? And then these regions were very much close to, these regions were very much close to, इनकी बात नहीं कर रही हूं यहां पे, ठीक है। ये रूट उन्होंने बनाया, ठीक है, ये रूट बनाया, इसकी वजह से उनका कंट्रोल किस पे हुआ? उत्तरापथ। ये एक ट्रेड रूट है, ट्रेड वाला रूट, स्पेशली ट्रेड रूट, उत्तरापथ, राइट। सो बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, राइट, they acquired various areas, they created supremacy, dominance in the trade, and then they created a route for trade, and they reached in these areas, and these areas were very much close to the old silk route, right? So उत्तरापथ को कवर किया, कोस्टल रीजन से आते आते साउथ में पहुंच गए, राइट। सो इसके जो लोकेशन है कोस्टल रीजन के आसपास और रिवर के सराउंडिंग, तो जैसे जैसे एकदम से ऐसे यहां नहीं पहुंचे, जैसे जैसे इनको ट्रेड में बेनिफिट होता चला गया, जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होती चली गई, वैसे वैसे पॉलिटिकली इन्होंने अटैक कर करके टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि नई पॉलिटिकल एक्विजिशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ भी तो इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री तो तभी स्ट्रांग होगी ना। सो द रिवर्स बिकम द फैक्टर बिहाइंड द प्रोटेक्शन एंड ट्रेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग मगध, राइट। सो ये हो गए उनके कैपिटल्स, राजगृह एंड पाटलिपुत्र। ओके, नाउ सी दैट लोकेशन, मगध कौन सा रीजन है ये? बिहार एंड झारखंड, ठीक है। अब बताओ, बिहार एंड झारखंड आर वेरी रिच एरियाज ऑफ मिनरल्स, मेटल्स, हाँ, राइट। मेटल्स में स्पेसिफिकली कौन सी? आयरन। रीजन is rich, was rich in minerals and metals. Metals, and specifically which metal? Iron. Now tell me, what are the significances of that iron? What were the significances of that iron in that region? Exactly. अब देखो, आयरन का यूज उन्होंने कहाँ किया? टू मेक वेपन्स, राइट। अब जिसके पास आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो उनके वेपन्स कैसे होंगे? मोर शार्प, राइट, स्ट्रॉन्ग, राइट। एंड वेपन्स के अलावा एग्जैक्टली टूल्स बने फॉर एग्रीकल्चर, यस। बिफोर दिस, बिफोर द आयरन, वुडन प्लो वर यूज्ड। वुडन प्लो और आयरन प्लो अगर दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो क्या होगा? आयरन प्लो कैसा होगा? मोर एफिशिएंट होगा। तो उससे क्या होगा? जो रीजन है, जो सॉइल है, उसकी
फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? सरप्लस होगा। सरप्लस होगा तो क्या होगा? और सरप्लस होगा तो ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो सिटीज होंगी, राइट। सो ये बेनिफिट हुआ आयरन का, ठीक है। एक और बेनिफिट है आयरन का, बताओ। Clean the forest, ma'am. वेरी गुड, क्लियर द फॉरेस्ट, वेरी गुड। मैं अभी बस ये बोलने वाली थी कि इमेजिन करो बिहार और झारखंड वाला रीजन, डेंस फॉरेस्टेड एरिया, राइट। देन दे यूज्ड आयरन टू क्लियर दीज फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो क्या होगा? एग्रीकल्चरल लैंड क्या होगा? इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सरप्लस, देन ट्रेड एंड देन सिटीज, दैट मींस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, राइट। चलो, ये तो हुआ आयरन का, ठीक है। अब एक चीज और, दैट रीजन वाज रिच इन एलिफेंट्स आल्सो, एलिफेंट्स आल्सो। तो जंगल को साफ कर दिया, एलिफेंट्स को पकड़ के ले गए आर्मी के लिए। अब सोचो, हिम्मत भी तो देखो, एलिफेंट को उन्होंने आर्मी में यूज कर लिया, है ना। गेटिंग दिस? सो दे यूज्ड एलिफेंट्स इन द आर्मी, क्लियर। अब ओवरऑल देखो, लोकेशन याद करो मगध की, राइट। अब लोकेशन में आप रिवर्स देखो, जहां रिवर होगी वहां पे एरिया कैसा होगा? एलुवियल सॉइल होगी। एलुवियल सॉइल मींस फर्टाइल सॉइल, राइट। उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल एरिया एक्सपांड हो गया, उसके साथ साथ टूल्स भी इंप्रूव हो गए, राइट। दैट मींस दैट रीजन वाज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, सो दे यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेस, राइट। सो ये दोनों पॉइंट लिखो, प्रोटेक्शन वाले भी, राइट। ये बना लो। ये ट्रेड रूट बनाने की अभी जरूरत नहीं है, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगी मॉरियंस की तब ट्रेड रूट बनाऊंगी। अभी आप मगध की ये लोकेशन लिख लो, ठीक है, मैप में। इनको नोट कर लो, कर ली नोट आपने?
कॉलेज की दुनिया से बाहर आ जाओ बच्चों। यू आर कॉलेज में, क्लास के बाहर पूरा बचपना दिखाओ, ठीक है। लेकिन व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट बनना, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ठीक है, और वो आपके बिहेवियर में शो होना चाहिए, ठीक है। आपकी थॉट प्रोसेस में, आप जब कहीं पे डिस्कशन करो, ठीक है, तो आपके पास डिस्कशन में इतने लॉजिक होना चाहिए कि सामने वाला पूछे आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो क्या, ठीक है। तो दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर पर्सनालिटी। क्या कह रहे हो, नहीं बताओ बेटा, ऐसे मतलब बी सीरियस, ठीक है, अदरवाइज मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रॉब्लम आप ही को होगी क्योंकि एग्जाम आपको देना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज लिखो, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न एम्पायर। Sources of modern empire, right? So the sources of modern empire means what? क्या मतलब हुआ इसका, sources of modern empire means? हाँ, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। अच्छा चलो, ऑनलाइन वाले आप भी बताओ, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न एम्पायर्स, मॉडर्न एम्पायर, हाँ बताओ क्या मतलब है इसका, सोचो। हाँ आप, एस्टेब्लिशमेंट्स। प्रियंका? मैम एविडेंसेस। Exactly. Sources of modern empire means the evidences which mentioned about the modern empire, right? वैसे कौन कौन से वो एविडेंसेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मॉडर्न एम्पायर होल्ड, राइट? सो कौन कौन से वो एविडेंसेस हैं, राइट, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, मॉडर्न एम्पायर के बारे में, राइट? So these sources classified or divided into 3 categories, and these categories are, first one is literary source, literary source, then archaeological source, and miscellaneous. Right? These archaeological sources are also categorized. Sorry, literary sources, miscellaneous. The literary sources are also categorized in various categories. First one is Buddhist literature. Buddhist literature. Jain literature. Puranas. See, these 3, Buddhist, Jain and Puran, that means Buddhism, Jainism and Brahmanism. Puran, right? That means what? These 3
were religious sources, religious literary source, right? Next category is secular indigenous literary source. Secular indigenous literary source. And foreign accounts. Foreign accounts. Right? Okay. Now, हाँ अभी सबको समझा रहे. See, Buddhist literature means बुद्धिज्म, जो कि एक नया रिलीजन, एक नया सेक्ट बन के आया, ठीक है. उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा लिटरेचर लिखा बुद्धिज्म पर, ठीक है. और ना सिर्फ बुद्धिज्म, अब देखो बुद्धिज्म का लिटरेचर है तो उसमें क्या होगा, बुद्धिस्ट फिलॉसफी होगी, राइट. और कहां कहां पे बुद्धिज्म कैसे कैसे स्प्रेड हुआ उसकी स्टोरीज होंगी, राइट. अब कैसे कैसे स्प्रेड हुआ, जब इसकी स्टोरी होगी तो किसने स्प्रेड किया इसकी भी स्टोरी होगी, राइट. सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर्ड बुद्धिस्ट लिटरेचर एज द सोर्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर, क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर में से कुछ लिटरेचर ऐसे हैं जिनमें अशोका के बारे में, मॉडर्न एम्पायर के बारे में, ठीक है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है. अब एक इंफॉर्मेशन तो ये होगी कि अशोका ने कैसे बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, राइट. एक और इंफॉर्मेशन इसमें कौन सी होगी, सी, जब एक रिलीजन किसी भी सोसाइटी में जब स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, जब किसी भी रिलीजन का एक्सपांशन हो रहा है, जब वो स्प्रेड हो रहा है, तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, राइट. अब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कौन करेगा, द रूलर. तो इन लिटरेरी सोर्सेज में जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आएगी, कॉन्फ्लिक्ट में ये होगा कि ब्राह्मणिज्म के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट था, दैट मीन्स व्हाट, हमें सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सोसाइटी में रिलीजन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, डीप रूटेड था, लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, और रिलीजन को लेकर इतने सेंसिटिव थे कि वो आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, ठीक है. फिर इसमें किसका कंट्रीब्यूशन दिखेगा, रूलिंग क्लास का दिखेगा, कि कैसे उन्होंने एफर्ट्स लगाए कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन सबको एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट उन्होंने दिया, कैसे स्प्रेड किया, कैसे सोसाइटी में पीस मेंटेन की, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इन लिटरेरी सोर्सेस में मिलती है, ठीक है, थ्रू वेरियस स्टोरीज, इंसिडेंट्स, राइट. सो ये सब वही है, पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट. अब क्योंकि ये रिलीजियस है तो हमने इसको क्या कंसीडर किया, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स. ये हमने डिफरेंट कैटेगरी बनाई, सेक्युलर, इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेस. सेक्युलर, दैट मीन्स दे आर नॉट रिलेटेड विद एनी रिलीजन, राइट. तो ये जो लिटरेरी सोर्सेज होंगे इसमें रिलीजियस फैक्टर नहीं होगा, तो इसमें कौन सा फैक्टर होगा, माइट बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल. मतलब इसमें जो स्टोरीज होंगी, जो बातें होंगी, वो कौन सी होंगी, सोसाइटी की होंगी, इकोनॉमी की होगी, पॉलिटिक्स की होगी, राइट. और फॉरेन अकाउंट हमने अलग से रखा. फॉरेन अकाउंट को हमने अलग से क्यों रखा, क्योंकि इस टाइम पे कौन आए थे, ग्रीक्स वर रूलिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट. तो उन्होंने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की अपनी बुक में, राइट. और यहाँ पे मैं एक कुछ नाम लिखाऊंगी आपको, ठीक है, कौन कौन से फॉरेन अकाउंट्स इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धिस्ट लिटरेचर को डिफाइन करते हैं, ठीक. बुद्धिस्ट लिटरेचर में फर्स्ट पॉइंट इज त्रिपिटकास.
त्रिपिताका। जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगी त्रिपिताका क्या थे। आफ्टर डेथ ऑफ महात्मा बुद्धा, वेरियस बुद्धिस्ट असेंबलीज और मीटिंग्स हेल्ड इन डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, और जितनी भी महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उन सबको कलेक्ट करके 3 पिटाकास बनाए। तीन पिटाकास बनी, 3 बास्केट्स बनी, ऐसे समझ लो। 3 मीन्स 3 पिटाकास, 3 लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। और इन्हीं में से है जातक, इन्हीं में से एक में है जातक टेल्स। टेल्स मीन्स ये वाली टेल, जातक टेल्स, टेल्स मीन्स स्टोरीज, जातक स्टोरीज। जातक कौन? जातक महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध की स्टोरीज। कौन सी स्टोरीज? जातक टेल्स इंक्लूड्स वेरियस स्टोरीज ऑफ previous births of महात्मा बुद्ध, प्रीवियस बर्थ्स ऑफ महात्मा बुद्ध। ये जो हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, तब मैं समझाऊंगी कि जातक स्टोरीज में प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज कैसे मेंशन की, उनको कैसे पता चला कि महात्मा बुद्ध पहले क्या थे, प्रीवियस बर्थ में क्या थे महात्मा बुद्ध, ठीक है। हाँ, जातक टेल्स में वही है मेंशन, किस बर्थ में कैसे थे वो, क्या काम करते थे। देयर आर वेरियस स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ्स ऑफ महात्मा बुद्ध, राइट। सो त्रिपिताकास एंड जातक टेल्स। सेकेंड वन, दीप वंश एंड महावंश। दीप वंश, दीप वंश, VAM लिखोगे, ठीक है, N नहीं लिखना है, M लिखोगे। दीप वंश एंड महावंश। Deep Vansh and Mahavansh are the literary sources of Buddhism created or composed in Sri Lanka. कहाँ के हैं ये? श्रीलंका के हैं। आप श्रीलंका के हैं, ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो रिलीजन था बुद्धिज्म, ये श्रीलंका तक कैसे फैला, किसने पहुंचाया, क्या एफर्ट लगाए, तो अशोका। तो जब उन्होंने अशोका के एफर्ट्स बताए तो अशोका के बारे में भी, उनके पूरे एम्पायर के बारे में काफी कुछ लिखा। तो इस सोर्स से हमें दीपवंश एंड महावंश 2, एक दीपवंश और दूसरा महावंश, कहाँ के हैं ये सोर्सेस? श्रीलंका के। एक और लिखो, दिव्यावदान, 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 लिटरेरी सोर्स ऑफ तिब्बत। लिटरेरी सोर्स ऑफ तिब्बत। तो कितने लिटरेरी सोर्स, कौन कौन से हमने इंपॉर्टेंट है मौर्यंस के लिए? बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? त्रिपिताकास, जातक टेल्स, दीपवंश एंड महावंश श्रीलंका, दिव्यावदान तिब्बत। यूपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है इसी से रिलेटेड। आपको जब मिल जाएगा, आप क्लास में ध्यान नहीं दोगे, फिर वहां आएगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सपोज त्रिपिताकास बिलोंग टू विच रिलीजन आ गया, तो फिर आप सोचोगे ये तो हो सकता है ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड हो, बुद्धिज्म से हो। बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये सोर्सेज इसीलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये टर्म्स किसी न किसी तरीके से किसी फॉर्म में आप तक पहुंचे, आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये है क्या, त्रिपिताकास क्या है, जातक टेल्स क्या है, ठीक है, दीपवंश एंड महावंश क्या है, श्रीलंका के लिटरेरी सोर्सेज अबाउट बुद्धिज्म, एंड दिव्यावदान तिब्बत। क्लियर? नाउ ये लिख लिया सबने, नोट कर लिया? अब जैन लिटरेचर लिखो। जैन लिटरेरी सोर्स दो इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है। आचरंग सूत्र, आचरंग सूत्र एंड सूत्र कृतंग, आचरंग सूत्र एंड सूत्र कृतंग। एक बार प्रोनाउंस करो, खुद से बोलो, आचरंग सूत्र एंड सूत्र कृतंग। ठीक, क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? सपोज इनमें से कोई एक नाम दे दिया, ये टर्म दे दी और पूछ लिया ये क्या है, तो क्या है ये? जैन लिटरेरी सोर्स है, राइट। आचरंग सूत्र और सूत्र कृतंग, राइट। अब लिखो सेक्युलर पुराणास में देयर आर वेरियस पुराणास, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब लिखो सेक्युलर इंडिजिनस लिटरेचर, सेक्युलर इंडिजिनस लिटरेचर, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन इज अर्थशास्त्र, हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एंड सेकेंड वन इज मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, रिटन बाय विशाख दत्ता। लिखो विशाख दत्त। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, मुद्रा राक्षस बाय विशाख, मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त। और ये लिखा कब गया? ये लिखा गया था गुप्ता पीरियड में, लेकिन इंफॉर्मेशन कब के मिल रही है इससे? मौर्य एम्पायर की। गुप्ता पीरियड बहुत बाद में आया, ठीक है। जो पहले हो चुका उसके बारे में बाद में लिखा जा सकता है ना भाई, भविष्य का ही तो नहीं लिख सकते हैं हम, पास्ट का तो लिख सकते हैं। सो मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त। अच्छा, अब फॉरेन अकाउंट्स लिखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज फॉरेन अकाउंट्स was Indica, Indica written by Megasthenes. Who was Megasthenes? ग्रीस स्कॉलर थे, फिलोसोफर थे एंड एम्बेसडर थे। किसके एम्बेसडर थे? ऑफ सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। मेगास्थनीज की, सेल्यूकस निकेटर, हाँ, उनकी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी, हाँ, ठीक है। सो मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, और ये काफी टाइम तक मौर्यन कोर्ट में रहे एज एन एम्बेसडर। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहे ये, ठीक है। जब कोर्ट में रहे तो इन्होंने मौर्यन एम्पायर के बारे में, वहां की सोसाइटी के बारे में, ठीक है, जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, उनके बारे में बहुत कुछ मेंशन किया। उनकी बुक का नाम क्या है? इंडिका, राइट। अब देखो क्या हुआ, मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका, ठीक है, और अभी के टाइम पर इंडिका जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसके एविडेंसेस नहीं है, इंडिका नहीं है। अब आप बोलोगे जब इंडिका है ही नहीं तो हमें कैसे पता इंडिका में क्या लिखा? हुआ ये, जब इन्होंने ये लिखा, ये सोर्स प्रिपेयर हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या किया, इंडिका को एज अ रेफरेंस बुक यूज करके अपनी अपनी किताबें लिखी, समझ गए, ठीक है। और
उन्होंने अपनी बुक में ये मेंशन किया कि ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ले रहे हैं, वी आर टेकिंग दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिका बाय मेगास्थनीज। सो अब जो कुछ भी हमें इंडिका के बारे में पता है वो डायरेक्टली इंडिका से नहीं पता, वो किससे पता है, अदर हिस्टोरियन से पता है, जिन्होंने इसको एज अ रेफरेंस रखा। ठीक है, लिखो अदर हिस्टोरियंस, अदर बुक्स, स्ट्राबो, हाँ ये इसके एविडेंसेस नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना ये, तो ये डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि बहुत पुराना है ये लिटरेरी सोर्स। ठीक है, अब जैसे वेद हैं वो ओरल कंपोजिशन में थे तो वो आगे ट्रांसफर हुए, तो ये खराब हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई या मिली नहीं ऐसा। ठीक है, सो स्ट्राबो, प्लिनी, डियोडोरस, स्ट्राबो की बुक का नाम क्या है, जियोग्राफी। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका। डियोडोरस की बुक का नाम है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। ये नेम है, हाँ उल्टा कर दिया मैंने इसको। ठीक है, हाँ ये तो इंडिका बुक है और ये राइटर। ठीक है, और यहाँ पे ये राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये बुक्स के नाम है। सो स्ट्राबो की ज्योग्राफी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका और नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, एंड डियोडोरस बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। राइट, ओके। एक बुक और है, ठीक है, जिसके राइटर अननोन है, उनके राइटर कौन है ये नहीं पता। ठीक है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो बुक है ये कलेक्टिव एफर्ट है ऑफ वेरियस स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस, राइट, not exactly the scholars or historians but the traders or mercantile classes, right, and the name of that book is Periplus of the Erythraean Sea, Periplus of the Erythraean Sea। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस बुक के बारे में जो अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये वो बुक है जो उस टाइम के जितने भी ट्रेड रूट्स थे, सी रूट्स, स्पेसिफिकली द सी रूट्स, उनके पूरे मैप इसमें हैं। उन ट्रेड रूट्स पे जितनी भी पोर्ट्स थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। उन पोर्ट्स के आसपास जो जो रूल्स थे, जो जो रूलिंग क्लासेस थी, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है अबाउट दैट टाइम पीरियड। उन्होंने पूरा मैप बनाया हुआ है अबाउट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो अभी आज क्लास खत्म करते हैं। हाँ, नाम तो याद हो गए होंगे आपको, अभी तक नहीं हुए? अच्छा बताओ, बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या क्या पढ़ा था?
जातक, जातक टेल्स, त्रिपिताकास। श्रीलंका वाले कौन से थे लिटरेरी सोर्स? दीपवंश एंड महावंश, दीपवंश एंड महावंश श्रीलंका। तिब्बत का दिव्यावदान, दिव्यावदान, राइट। अच्छा, जैन लिटरेचर आचरंग सूत्र, आचरंग, आचरण से क्या बना है? आचरंग, आचरण मीन्स डिसिप्लिनरी रूल्स, राइट। सो आचरंग सूत्र of Jain literature, and second one is Sutra Kritang, right? अच्छा, then secular indigenous literature में हमने दो कंसिडर किए, कौन कौन से? अर्थशास्त्र एंड मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा। और ये इंडिका, इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज ने। स्ट्राबो, स्ट्राबो की जियोग्राफी। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। डियोडोरस बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, बिब्लियोथेका हिस्टोरिका किसकी है? डियोडोरस की। एंड दिस वन इज पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, राइट। एक दो बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और मिसलेनियस में क्या क्या आएगा फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।